Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya, and I welcome you all to my channel Psychic by Tanya. In the last session, we completed our chapter number 1, Variations in Psychological Attributes. In very interesting way, एक line पढ़कर in proper detail में we understood their meaning. So I hope it is pretty much clear to you now, and it would help you in your boards, and it was worth watching for you. And now I'm bringing up chapter number 2, which is self and personality. Again, ऐसे ही छोटे छोटे parts में I'll be bringing up certain topics and explaining each and every chapter in detail, and each and every line would be very, very clear to you. So without any further delay, let's begin with the chapter. Okay, so let us now start with the chapter. Self and personality. अब इसमें फर्स्ट आई वुड वांट कि हम इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ एक बार पढ़ें, बिकॉज इट इज़ लाइक क्वाइट explaining in itself. Quite often, you must have found yourself engaged in knowing and evaluating your own behavior and that of others. इसने ये क्यों करा, मैंने ये ऐसे रिएक्ट क्यों करा, I could have reacted like that. ऐसे करके भी keep on evaluating कि कौन सा रिएक्शन कब आया एंड हमने क्यों ऐसे एक्ट करा, या हमारे अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, ऐसे करके फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर अदर्स ऑल्सो. ठीक है. You must have noticed how you react and behave in certain situations in a manner different from others, right? You may have also often asked questions about your relationships with others. To find an answer to some of these questions, psychologists use the notion of self. ठीक है, ये जो भी हमारे questions होते हैं related to our behavior, our actions, या जो भी चीज़ है उसको psychologist किस notion के through explain करते हैं, the notion of self. Similarly, when we ask questions such as why people are different, how they make different meanings of events, how they feel and react differently in similar situations, that is questions relating to variations in behavior, वो किस में जाएंगे, to the notion of personality. अगर आप देख रहे हो कि आप आपस में लोगों से क्यों अलग हो, that is what the notion of self. ठीक है. एंड नोशन ऑफ पर्सनालिटी क्या है कि हर इंसान सिमिलर सिचुएशन अगर प्रोवाइडेड है तो भी डिफरेंटली एक्ट करता है, ऐसा क्यों. ठीक है. बोथ दीज कॉन्सेप्ट सेल्फ एंड पर्सनालिटी आर इंटीमेटली रिलेटेड, एंड सेल्फ पर्सनालिटी का कोर है, लाइक पर्सनालिटी लाइज विद इन सेल्फ टाइप्स. ठीक है. Okay, so let us now begin with the actual chapter, self and personality. Self and personality refer to the characteristic ways in which we define our existence. मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, what I like, what I don't like, ये सारी चीज़ें. ठीक है. They also refer to the ways in which our experiences are organized and show up in our behavior. ये वो तरीके हैं जो क्या बताते हैं, in which our experiences are organized हमारे अंदर, हमारी मेमोरी में, and show up in our behavior, कैसे वो हमारे different actions में visible होते हैं. ठीक है. From common observation, we know that different people hold different ideas about themselves. That is true. These ideas represent the self of a person. What a person thinks about herself or himself, ये क्या है उसका self determine करता है. We also know that different people behave in different ways in a given situation. Same situation में दो अलग अलग लोग जिनकी अलग अलग personality है वो अलग अलग तरह से behave और react करेंगे. But the behavior of a particular person from one situation to another generally remains stable. लेकिन अगर मैं situation vary करूँ और इंसान सेम रखूँ, then there must be some consistency in the way of reacting. ठीक है. Such a relatively stable pattern of behavior represents the personality of that person. यानी जो एक इंसान है और वेरियस सिचुएशंस में अगर उसको पुट करा जाए तो उसका जो एक कॉमन वे है टू डील विद थिंग्स दैट लाइज इन देयर पर्सनालिटी. ठीक है. Thus different persons seem to possess different personalities. These personalities are reflected in diverse behaviors in person. Concept of self. From your childhood days, you may have spent considerable time thinking about who you are and how you are different from others. By now, you already have developed some ideas about yourself. मेरा नाम ये है, मुझे ये पसंद है, मैं ये खाता हूँ, मुझे ये खाने में अच्छा लगता है, ऐसी सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, मेरा रिलीजन ये है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें also account to yourself. How easy अच्छा ठीक है. Then there is a activity in the next page, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. While working on it, you were describing yourself. You are aware of yourself in the same way as you are aware of various objects in your surrounding environment, such as a chair or a table in your room. A newly born child has no idea of itself.
वो उसको नहीं पता है वो कौन है, उसको खुद की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है, ठीक है। एज अ चाइल्ड ग्रोज ओल्डर, द आइडिया ऑफ सेल्फ इमर्जेस एंड इट्स फॉर्मेशन बिगिंस, ठीक है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग अ चाइल्ड्स आइडिया अबाउट हिज और हर ओन सेल्फ. Our interaction with people, our experiences, and meaning we give to them serve as the basis of our self. The structure of self is modifiable in the light of our own experiences and that of the experiences we have of other people. हमारी सेल्फ किससे इन्फ्लुएंस होगी? एक तो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस और एक जो दूसरों के साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे, ठीक है। Okay. You will find that they've produced a fairly long list of attributes about how they identify themselves. कोई अपना नाम लिखेगा, आई एम तान्या जैन, आई एम क्या बोलते हैं, आई एम स्टडिंग इन दिस क्लास, आई एम इन दिस स्कूल एंड आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्मार्ट, ऐसी सारी चीज़ें पीपल राइट. The attributes they've used for identification tell us about their personal as well as social or cultural identities. या लोग बोलेंगे आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम पटना, ऐसी सारी चीज़ें. तो ये सब क्या है, उस इंसान की डिफाइनिंग फैक्टर्स है, सोशल वे में भी एंड आपके पर्सनल वे में भी. अब पर्सनल आइडेंटिटी क्या होगी? पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन जो उसको दूसरों से अलग करता है. यानी इंसान का नाम, उसकी क्वालिटीज़, आई एम गुड एट टीचिंग, आई एम गुड एट डांसिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और हर हिज पोटेंशियलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़, जैसे आई एम अ गुड सिंगर और आई एम गुड डांसर, आई एम अ गुड स्विमर, ऐसी सारी चीज़ें. और her or his beliefs, जैसे somebody believes in gods and destiny, she or he is disclosing her or his personal identity. वो खुद कैसे हैं, ठीक है, वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, किस चीज़ में नहीं करते हैं, वो किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में थोड़ा लैक करते हैं, ये सारी चीज़ें. अब सोशल आइडेंटिटी क्या होगा? जो एक इंसान को सोशल और कल्चरल ग्रुप से अपने क्या करेगा, कनेक्ट करेगा. When someone says that she or he is a Hindu or a Muslim, a Brahmin or an Adivasi, और अ नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, ये सारी चीज़ें उसकी क्या बताती है? सोशल आइडेंटिटी बताती है. These descriptions characterize the way people mentally represent themselves as a person. Thus, self refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts, feelings with regard to herself or himself. ठीक है, सेल्फ की ये पूरी अच्छी खासी डेफिनेशन है, ये लर्न करना है. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन एवरी कॉन्टेक्स्ट. जैसे एक इंसान खुद को डिफाइन करेगा, वो सब किसके अंदर आएगा? सेल्फ के अंदर आएगा. These experiences and ideas define the existence of an individual both at the personal and social level. ठीक है, क्लियर है? देन नेक्स्ट, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट. सेल्फ का क्या होता है? डुअल स्टेटस होता है. एक जगह वो एक्टर का रोल प्ले करता है, एक जगह रिसीवर का, लाइक ऑब्जेक्ट का, ठीक है. इफ़ यू रिटर्न टू योर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन, जो P2.1 वाली एक्टिविटी थी, समबडी वुड से आई एम अ डांसर, आई एम दिस, आई एम दैट. और सेकेंड केस में कोई बोलेगा आई एम द वन हु ईजीली गेट्स हर्ट. अब आई एम अ डांसर, आई एम परफॉर्मिंग समथिंग, आई एम द वन डूइंग द थिंग, तो मैं क्या हुई? सब्जेक्ट. एंड देन व्हेन आई एम सेइंग आई एम द वन हु गेट्स हर्ट ईजिली, यानी मेरे पर कुछ एक्शन हो रहा है, मुझे हर्ट किया जा रहा है, राइट. सो व्हाट इज दैट? दैट इज मी बीइंग एन ऑब्जेक्ट फॉर समथिंग, ठीक है. दिस मीन्स दैट सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट. When you say I know who I am, the self is being described as a knower. मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, मैं ही जानती हूँ. एंड देन who I am, किसके बारे में जानती हूँ? खुद के बारे में जानती हूँ. देन वो भी क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ रहा है, ठीक है. नोअर एंड द नोन. As a subject actor, the self actively engages in the process of knowing itself, and as an object, it gets known. ठीक है. This dual status of self should always be kept in mind. ठीक है. Now there are certain kinds of self. There are several kinds of selves. They get formed as a result of our interactions with our physical and socio-cultural environment. ये सारी ना छोटी छोटी लाइन्स आई हैव सीन इन MCQs. मैंने बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करे थे ड्यूरिंग माई बोर्ड्स, तो बहुत ही मिनिमल लाइन से भी ना MCQs बन जा रहे थे. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग है NCERT. एकदम एग्जैक्ट लाइन्स उठकर आती हैं. The first elements of self may be noticed when a newborn child cries for milk when it is hungry. Although the cry is based on reflex, ये later क्या बन जाता है? एक awareness कि भाई मुझे भूख लगी है. This biological self in the context of socio-cultural environment modifies itself
while you may feel hungry for a chocolate, an Eskimo may not. A distinction is made between personal and social self. अभी हमने क्या पढ़ा था? Personal identity and social identity. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? Personal self and social self. इन चारों में ही आपस में combinations बन के differences पूछे जा सकते हैं. The personal self leads to an orientation in which one feels primarily concerned with oneself. कि मेरे बारे में बताओ, मेरी biological needs, मेरी biological self मुझे पता है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी आती है. But soon पहले बचपन में तो सिर्फ बायोलॉजिकल रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सोशोलॉजिकल या सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी अपीयर करता है, ठीक है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर और हिज एनवायरमेंट लीड टू कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल सेल्फ टू इमर्ज. Emphasis comes to be laid on those aspects of a person that relate only to the concerned person, जैसे उसकी पर्सनल फ्रीडम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अचीवमेंट एंड उसके बाकी कम्फर्ट्स, ठीक है. देन सोशल सेल्फ आती है कब? व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल. आपका दूसरों से रिलेशंस जब हम एम्फेसिस में लाते हैं तब. कैसे? कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं उसमें? कॉपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सेक्रीफाइस, सपोर्ट, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें. दिस सेल्फ वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स, इसलिए इसको फेमिलियल सेल्फ या फिर रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं, ठीक है. डू रिमेंबर इट. और इनके डिफरेंस टेबल्स भी बना लेना, जैसे आई टोल्ड यू बिफोर. वैसे इन चारों के साथ में कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो मेक डिफरेंस टेबल वाली चीज़. कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ. Psychologists from all the parts of the world have shown interest in the study of self. These studies have brought out many aspects of our behavior related to self. As indicated earlier, all of us carry within us a sense of who we are and what makes us different from someone else. ठीक है, हमने पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी पढ़ा और अभी पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ भी पढ़ा. तो लाइक वी आर वेरी मच क्लियर विद इट. We cling to our personal and social identities and feel safe in our knowledge that it remains stable in our lifetime. मेरा नाम नहीं चेंज होगा, मेरी कैपेबिलिटीज़ बढ़ सकती है, जो है वो कम थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है. ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, ये लाइफ टाइम वी आर सिक्योर कि हाँ ये हमारे पास है. The way we perceive ourselves and our ideas we hold and the ideas we hold about our competencies, ये सब क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट. मेरे को खुद के बारे में कैसा लग रहा है, वॉट आई फील अबाउट माई सेल्फ इज वॉट सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है. एट अ वेरी जनरल लेवल दिस व्यू ऑफ वन सेल्फ इज ओवरऑल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. कोई लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ऐसा होता है ना, खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, वो वाली चीज़ होती है. एट मोर स्पेसिफिक लेवल अगर हम देखें तो कोई अपने एथलेटिक्स पर बहुत ज़्यादा वो होगा पॉजिटिव कि आई एम द बेस्ट, और वहीं अगर डांसिंग आ जाएगी तो आई कैन नॉट डू इट, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आता है, वो वाली चीज़ होती है, सबके साथ होती है. एट इवन मोर स्पेसिफिक लेवल वन मे हैव अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट अबाउट वंस रीडिंग एबिलिटी बट अ नेगेटिव वन अबाउट वंस मैथमेटिकल स्किल्स, ठीक है. फाइंडिंग आउट एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ईजी, इसलिए वही एक्सप्लोरिंग वाली चीज़. फाइंड आउट वॉट यू आर गुड एट एंड वॉट यू आर नॉट. The most frequently used method involves asking the person about herself or himself. किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ में अच्छे हो, ऐसे करके. देन कम्स सेल्फ एस्टीम. अब 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी. सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एफिकेसी, वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सो बी वेरी केयरफुल. सेल्फ एस्टीम इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ. As persons, we always make some judgment about our own value or worth. हम हमेशा खुद के वैल्यू का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि how good I am at something. This value judgment is what self-esteem. Some people have high self-esteem. They know that they are good at everything या at least something. And कुछ लोग होते हैं they are low at self-esteem. वो थोड़े से reserved रहते हैं. They do not like engaging in social होता है ना settings, तो वो वाला चीज़ है. Whereas others may have low self-esteem. In order to assess self-esteem, we present a variety of statements to a person and ask her or him to indicate the extent to which those statements are true for her or him. For example, we may ask a child to indicate the extent to which statements such as I am good at homework or I am the one usually chosen for games, अगर इसके likely answers yes हैं and they are like very confident while answering these, तो वो सेल्फ एस्टीम में उनका हाई होगा. बट समबडी हु इज़ नॉट एबल टू आंसर या थोड़ा सा शाय फील कर रहा है या दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, दे डोंट फील कि वो ज़्यादा वैल्यूड हैं सोसाइटी में, तो वो थोड़ा सा लो ऑन सेल्फ एस्टीम नज़र आते हैं देन, ठीक है. येस इज़ अ मोर फेवरेबल आंसर इन क्वेश्चंस में. स्टडीज़ इंडिकेट दैट बाय द एज ऑफ 6 to 7 years
चिल्ड्रन में सेल्फ एस्टीम फॉर्म होने लग जाता है। कौन से 4 एरियाज़ में? एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल या एथलेटिक, और फिजिकल अपीयरेंस वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है, which become more refined with age. Our capacity to view ourselves in terms of stable dispositions permits us to combine separate self-evaluations into a general psychological image of ourselves. This is an overall sense of our self-esteem. This is important. ठीक है, बिल्कुल हाईलाइटेड उसमें नहीं है, बट एक ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि तुमको पता है इसमें अच्छो, इसमें अच्छो, इसमें अच्छो, इसमें अच्छो, अब उसको कंबाइन कर कर एक क्या व्यू तुम्हारा बना रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी, दैट इज व्हाट योर ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम शोज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर एवरीडे बिहेवियर. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन विद हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम परफॉर्म बेटर इन स्कूल देन with those in low academic self-esteem, and children with high social self-esteem are more liked by their peers, जिनका कम होता है उनसे. then again जिनका low self-esteem होता है वो थोड़ा सा anxiety, depression और थोड़ा सा anti social behavior कि मुझे नहीं interact करना टाइप्स शो करते हैं. studies have shown that warm and positive parenting helps in the development of high self-esteem among children, as it allows them to know that they are accepted as competent and worthwhile. ठीक है, अगर पेरेंटिंग बहुत सॉफ्ट है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कराई गई है, पेरेंट्स वैल्यू देयर चाइल्ड एंड दे टेल हिम कि तुम इम्पॉर्टेंट हो एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, तो पीपल आर हाई इन देयर सेल्फ एस्टीम. एंड वहीं अगर एक इंसान को थोड़ा सा नेग्लिजिबल फील कराया जाए या उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके कराया जाए, तो दे ऑलरेडी फील कि मेरा कुछ वैल्यू नहीं है, सो लो सेल्फ एस्टीम उनमें डेवलप हो जाता है. और जब पेरेंट्स ज़्यादा बच्चे के डिसीजंस लेने में, हर छोटी छोटी चीज़ में, छोटे माइनर डिसीजंस में भी ट्रस्ट नहीं करते कि दैट पर्सन कैन डू और समथिंग, तो वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है एंड उससे सेल्फ एस्टीम डाउन जाता है. ठीक है. सेल्फ एफिकेसी. Self-efficacy is another aspect of ourself. People differ in the extent to which they believe they themselves control their life outcomes, or the outcomes are controlled by luck or fate or other situational factors. अगर कोई एग्ज़ाम है एंड मान लो a person is failing, एक तो चीज़ होगी कि he knows कि उसने पढ़ाई नहीं करी इसलिए फेल हो रहे हैं, या फिर होगा कि यार मैंने तो ये पढ़ा था और ये आ गया, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मैं जो पढ़ के गया वो तो आया ही नहीं, वो वाली चीज़. ठीक है. The notion of self-efficacy is based on Bandura's social learning theory. This is very very important. MCQ बनता है, proper question आ जाता है कि कैसे based है, so be attentive. Bandura's initial studies showed that children and adults learn behavior by observing and imitating others. ये हमने पढ़ा था modeling and imitation वाला चीज़. People's expectations of mastery or achievement about their convictions and their convictions about their own effectiveness also determine the types of behavior in which they would engage. उनको कितना खुद से expectations है, वो कितना किसी चीज़ में एकदम mastery पे जाना चाहते हैं, कितना achievement oriented हैं, वो डिफ़ाइन करेगा कि कैसे behaviors में कितना ज़्यादा रिस्क वो लेंगे, कितना कम रिस्क लेंगे, वो चीज़ें वो डिटरमाइन करता है. ठीक है. अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी अलाउज पीपल टू सिलेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इवन कंस्ट्रक्ट देयर सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर ओन लाइफ. कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, अब मैं उसके लिए कैसे एक्ट करूँ, वो डिसीजन मेरा है, वो तरीका जो होगा वो मेरा होगा टू सूट माई एनवायरमेंट उस वे में. राइट. People with strong sense of self-efficacy also feel less fearful. They do take challenges and they take that little risk which most people don't want to, right? Self-efficacy can be developed. ऐसा नहीं है तो develop नहीं होगी. People with high self-efficacy have been found to stop smoking the moment they decide to do so. उनमें वो will होती है, उनमें वो ability होती है to do what they decide. ठीक है. Our society, our parents and our own positive experiences can help in the development of a strong sense of self-efficacy by presenting positive models during the formative years of children. गुड पेरेंटिंग में सब ऐसे हाई सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एफिकेसी, सब कुछ ऐसे हाई होगा, बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है. सेल्फ रेगुलेशन. What is happening? Self-regulation refers to our ability to organize and monitor our own behavior, अपने emotions को, ये सारी चीज़ें.
people who are able to change their behavior according to the environmental demands, ठीक है, क्या required है अभी, कैसे मुझे act करना चाहिए, मुझे calm रहना चाहिए, I should take an action very quickly, ये सारी चीज़ें आपको modify करना या environment से suit करके करना आना चाहिए. Many situations of life require resistance to situational pressures and control over ourselves to stop ourselves from acting ऐसे एकदम quickly, immediately, right? This becomes possible through what is commonly called as willpower. As human beings, we can control our behavior the way we want. We often decide to delay or defer the satisfaction of certain needs. ठीक है, जो अभी आगे आएगा, जैसे व्रत होते हैं, रोज़ा होते हैं, इसमें यू स्टॉप योर सेल्फ, यू कंट्रोल कि मुझे नहीं खाना अभी तो नहीं खाना, मुझे नहीं अभी ये चीज़ करनी तो नहीं करनी, राइट? तो वो क्या है, एक लेवल का सेल्फ कंट्रोल है, एंड इट इज़ a part of our cultural tradition also, right? Learning to delay or defer the gratification of needs is called self-control. Self-control plays a key role in fulfillment of long-term goals. रुक कर, ठहर कर, चीज़ों पे कंट्रोल रख कर, ठीक है, ऐसे नहीं कि पैसा आया एंड तुरंत स्पेंड कर दिया, नहीं, कंट्रोल, सेव इट फॉर योर फ्यूचर, वो सारी चीज़ें क्या होती है, सेल्फ कंट्रोल का पार्ट होती है, राइट? इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन, आई टोल्ड यू, व्रत, रोज़ा, ये सारी चीज़ें helps you to control yourself and be detached from the worldly, material things वाली चीज़ है. A number of psychological techniques of self-control have also been suggested, जैसे observation of our own behavior, know what you are doing yourself, right? आपको पता चलेगा क्या चीज़ गलत कर रहे हो, क्या चीज़ सही कर रहे हो, just be very attentive. तो you will yourself want to do the positive things more and reduce the negative things. देन सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को बताओ मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ करनी चाहती हूँ, ठीक है. वी ऑफन इंस्ट्रक्ट आवरसेल्व्स टू डू समथिंग एंड बिहेव इन द वे वी वांट. देन होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट, कि खुद को इंस्ट्रक्ट तो कर दिया कि ये करना है, और फिर ये चीज़ और बोलो कि अगर मैंने ऐसा करा तो आई विल बी रिवॉर्डिंग माई सेल्फ विद अ प्लेट ऑफ मैगी या ऐसे बोल ऑफ मैगी, राइट? कि मैं मैगी खाऊंगी अगर ऐसा मैंने कर लिया, अगर मैं पॉसिबली कर पाई तो. This involves rewarding behaviors that have pleasant outcomes. बहुत ही lame example था, I'm sorry, but okay. For example, you may have to go to see a movie with friends if you have done well in an examination. तो उस examination के लिए ना automatically you will study. Parents करते हैं ऐसा कि घूमने भेज देंगे अगर पढ़ाई कर लोगे तो, है ना, खेलने जब भी जाओगे जब होमवर्क कर लोगे, तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ व्हाट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दैट दे गिव. लेकिन खुद को ये चीज़ बोलना कि अगर मैंने ये कर लिया तो आई एम अलाउड टू डू सो, तो ये क्या होगा, सेल्फ रीइंफोर्समेंट होगा. दीज टेक्निक्स हैव बीन tried out and found quite effective with respect to self-regulation and self-control. So this was it for today's chapter, matlab today's session, I guess. In next session में we'll be starting with culture and self, and then we'll continue with concept of personality. I'm again telling you this is a long chapter. It may take certain parts, but बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, because this is what is the purpose of our channel, right? Okay, so I'll see you in my next video. तब तक के लिए take care and bye bye.